where the title is Thought Virus Slate of Mouth. Isn't it look something awkward? You have never heard of what is slate of mouth and what is thought virus. अभी तक आपने सुना होगा वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, वायरस ब्लड में घुस जाता है, वायरस हवा में घुस जाता है. बट व्हाट अबाउट इफ वर्ड दोज वायरस एंटर्स इन योर थॉट? अगर वो वायरस आपके विचारों में घुस गया, if that virus enters in your inner world, then your slate of mouth is changed. What is slate of mouth? Let's understand. Slate of mouth होता क्या है? ये समझने के पहले मैं बता दूं आपको कि आपके इनर वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटी चल रही है उससे आपके हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट हो रहा है. काइंडली चेक whether your legs are moving or static. Kindly check whether your legs are moving or static. Kindly check your hands are moving or they are static. Is your inner world silent or your inner world is under turmoil? अगर इनर वर्ल्ड में टर्मोइल है तो आप ऐसे ऐसे करोगे, पैर ऐसे ऐसे करेगा, आप टैब चेंज करोगे, आप थोड़ा इधर देखोगे, थोड़ा उधर देखोगे, थोड़ा. तो ये इनर वर्ल्ड के अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है तो आप कई सारी एक्टिविटी करते हैं. So being a master practitioner of neuro-linguistic programming, in NLP, this is called as digital auditory. ये क्या है? ये हमारे शरीर का छठा सेंस है, सिक्स्थ सेंस. आपने 5 ही सेंस ऑर्गन सुने होंगे, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा. बट ये जो है डिजिटल ऑडिटरी, ये छठा सेंस है. ये जो है ये आपको कहता है कि यहाँ पे कैमरा में इतने सारे लोग दिखा दिए हैं, सारे बढ़िया लग रहे हैं, सारे ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहे हैं, फिर भी मोबाइल उठा करके मैसेज क्यों देखना है? किताब पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको पता है आंखें देख रही हैं और फिर भी मन करता है कि कुछ और कर ले. ये जो मन है ये छठा सेंस है. व्हाट वी कॉल इट एज अ डिजिटल ऑडिटरी. और आप कहते हैं कि भाई हम तो सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, आई नो एवरीथिंग. But because you are here in the session, which means that you are having an open mindset, you have a growth mindset, and you want to grow. And when you want to grow, you need to understand that your words are your world. I repeat again, your words are your world. Your words create your own world, and your words create the world around you. And your words create the world of other people. And if you are a teacher, you create the world of so many students. So your every word that you express is having a power. And this is called as slate of mouth. The magic trick of the mouth, like the slate of hands, makes magics. When you use the trick to create a magic, like a magician uses slate of hand, and you being a powerful personality, a dynamic personality, a magnetic personality, is expert in using slate of mouth. So your mouth becomes the treasure of gold and platinums and the diamonds, of course. So like if you're searching for diamond and the gold all around your world, it is there inside in your slate of mouth. And if it is infected, we call it as thought virus. इसका मतलब कि आपके थॉट में वायरस आ गया है. और वायरस आएगा तो बाहर निकलेगा. वायरस आएगा तो वो बाहर निकलेगा. और बाहर कैसे निकलेगा? वो बाहर आएगा आपके स्लेट ऑफ माउथ में.
It comes out in a form of sleight of mouth. For example, you want to see what is sleight of mouth practically? Theoretically to ho gaya. I explained what is sleight of mouth. Now let us listen sleight of mouth from Akanksha Pandey. She is very expert speaker. So I invite you to put your mic on, and I will ask few questions, and others, those whose cameras are on, I believe you are actively participating, and those whose cameras are off, I believe you are out of the world. Okay. Yes, you सर are मुझे out of the 5 world. मिनट लगे सर चाहिए All right. सर ओनली 5 Because you are out of the world. So those who are capable of switching on the camera, just switch on the camera, which will make your presence and you'll be vigilant and accountable and focused. All right, Akansha, I hope your mic is on. Yes, sir. Good evening, sir. And you are under surveillance for next 1 minute. All right? Because Yes, sir. you are going to create a world for all these people, 29 people who are sitting here. And every word that you express becomes the world for others. All right. Are you comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Are you the right choice for me? Yes, sir. Okay, so need not to switch on the mic again and again. While you are troubling your hands again and again, just leave it like that. Switch on and leave it. It won't create any trouble, right? Relax. Okay, sir. And your right leg, which is vibrating, just to stop it. And the left leg also, which is vibrating, just to stop it. All right. Yes, sir. All right. So, what is failure means to you? Sir, जैसा कि मैं I had failed many times in many attempts in NET exam because I think as earlier when I was in my PG तो उसी टाइम पे मैंने मतलब सिर्फ नेट के बारे में सुना था ओके एंड फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की उसके बाद मैंने मेरे 6 अटेम्प्ट में मैं फेल हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बार बार फेल होना वो मेरे माइंड में इतना ज्यादा इफेक्ट कर गया कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ अच्छा भी कर लेती हूँ तो फिर भी मुझे बिलीव नहीं होता मुझे लगता है कि अरे हो गया एक आध बार ही तो हुआ है नहीं होगा मतलब वो नहीं जो वर्ड है इतना ज्यादा माइंड पे घर कर गया है कि मैं अगर कुछ पॉजिटिव करती भी हूँ तो उसको पॉजिटिव काम में ना बस नहीं होगा अरे ऐसा होता है ऐसा मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता और सबसे ज्यादा होता है कि मैं अपनी किस्मत अपने भलक को हमेशा कोसती रहती हूँ कि अरे नहीं मेरी किस्मत में ही तो नहीं है ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो मुझे लगता है कि All right. जो काम मेरे से नहीं हो रहा है वो सब फेलियर ही है मेरे लिए All right. तो अभी आपने देखा कि आकांक्षा ने कहा कि मेरी किस्मत में नहीं है और मैं किस्मत को कोसती रहती हूँ। तो इन्होंने बहुत सारे वर्ड यूज किए अपने लैंग्वेज के अंदर, एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू हर वर्ड्स. हाउ डू यू फील? मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, और डीमोटिवेटेड, डाउन, नेगेटिव? Okay, Vinita says down, negative. All right. So this is called a sleight of mouth. So your mouth is having a trick, it's having a technique, it's having a magic. And when you create this magic, you create first your own world. Because when Akansha was telling कि मेरी किस्मत ही खराब है और मैं किस्मत को ही कोसती रहती हूँ, she is not feeling well while she is using this sleight of mouth. लेकिन फिर ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? From where they are coming? They are coming from our digital auditory. मैं खुद से कहती रहती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो फेलियर ही है, और मैं कुछ अच्छा भी कर लूं तो मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैंने कुछ अच्छा कर लिया, वो भी फेलियर ही लगता है. दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल ऑडिटरी.
आज मैंने एक वीडियो अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल स्टेटस में लगाया था, कुछ लोगों ने देखा होगा। जिसने नहीं देखा है उनको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि हाउ द स्लेट ऑफ माउथ इज सो पावरफुल एंड हाउ इट मेक्स द डिफरेंस। ऑलराइट, तो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, इमोशनल जीनियस ग्रुप में पोस्ट किया था, लोगों ने देखा होगा एटलीस्ट। इमोशनल जीनियस। Yes, sir. All right, so let me show it to everyone and let us see what is sleight of mouth. So this is one of the Olympiads and she is making an attempt. Look at her sleight of mouth here when she is beginning. Look at her body language and look at the rotation of the tongue inside the mouth. Rotation of the tongue and looking down. Okay, she's looking down and going for a run. Look at her eyes and tongue rotating inside the mouth. This all happening unconsciously as a result of digital auditory. What is running inside the head? The sense organs are not involved here. The sixth sense organ, which is digital auditory, is involved here. And then looking at the frustration. And one more thing, you look at the shoulder position. Look at her shoulders. Look at her shoulders. Shoulders are automatically bent forward. The back is coming out. This is physiology, the negative physiology which is coming out of कुछ मैसेज ब्रेन के अंदर चल रहे हैं. Because of that messages, the outer physiology changes. जो हमारा इधर अंदर चल रहा होता है ना, वो बाहर दिखता है पूरा. She was finished with 16th place. And after 4 years, 2008 Beijing Olympic, bitter failure and frustration, hand on the head, shoulders forward, back backward. Look at the physiological changes that happens with the inner turmoil. अंदर जो चल रहा होता है वो बाहर किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, और ये जितना ही रिफ्लेक्ट होगा उतना ही फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सैडनेस ये सब बढ़ता चला जाएगा. And this time you feel a change, little bit of change. Her eyes are not down, eyes are straight now. She has got training for 8 years. And even she is not rotating the tongue this time. And the shoulders are not slouching forward. And because of that, she was very close to finish line, very close, but still it fall. And this time she is clapping, she is not frustrated, her hands are not on the head. So automatically the inner turmoil is silencing down. You saw the difference in 2008 and 2012. She's clapping even after losing. Now she has learned how to control that inner thought, inner turmoil. See the claps, and see the shoulders, being proud of herself, being a failure. Because now she has changed her belief system that every failure is a feedback. अभी तक इसको ये लग रहा था कि फेलियर का मतलब मैं यूजलेस हूं, मैं वर्थलेस हूं. बट नाउ आफ्टर लर्निंग द साइकोलॉजी, द न्यूरोलॉजी, शी इज वन ऑफ द NLP expert. So after she learned, she is celebrating her failure. Look at it again. See the celebration.
In 2008 Olympic also she was finished with fourth place. 12 also she is finished with fourth place, but there is a whole change in the neurology. There is a whole change in the physiology, how she is reacting, how she is clapping. And that makes all the difference. When the inner world is rich, the outer world reflects it. All right, let us see more. And this is 2016. Now she has been expert in controlling her neurology, and look at her physiology, and look at the lip sync that she is making. This is called as self-hypnosis. Anchoring yourself to make yourself successful. Look at her murmuring of the sound. That makes all the difference. Giving the inner voice, giving the inner voice. मुझे लगता है मेरी जिंदगी ही बदल गई है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी उलट गई है, मुझे लगता है मैं स्टक हो गया हूं. ये क्या है? ये लिपसिंग है. दिस इज हाउ द digital auditory message that we give, and that makes the whole difference. This is what is called as sleight of mouth. This is what is called as the virus in the thought. And see the physiology. Look at the physiology. I'm just pausing and showing. Look at the body, absolutely straight. Eyes, look at the eyes, looking forward, not down. It took her 12 years to understand this neurological change. 12 years to understand this neurological change in sleight of mouth and how to control the inner turmoil and how to stop virus of the thought, how to take antiviral medicine in terms of neuro-linguistic programming, how to rewire those neurons which are infected and diseased. वैसे न्यूरॉन जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनको डिजीज लग चुकी है, उनको कैसे सही किया जाए कि वो सही डिजिटल ऑडिटरी प्रोड्यूस करें, स्लेट ऑफ माउथ सही हो. Let's hear another slate of mouth from Karishma. All right. So you can put your mic on if you're interested. If you're a volunteer, rather. It's not forceful intervention. Yes. So Karishma, how do you notice success? Sorry, sir. How do you notice success? Sir, actually my network is a little bit slow. Okay, network is slow. All right. कोई बात नहीं, आप mic off कर लीजिए. I will take Yes. someone else. Maybe Swati. जिनका माइक और कैमरा ऑन है, उन्हीं से मैं इंटरवेंशन करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि वो जिंदा हैं. ऑल राइट. यस स्वाति, हाउ डू यू नोटिस सक्सेस? Good evening, sir. गुड इवनिंग. So, from my point of view, success is about satisfaction. कि आप कितना सेटिस्फाई हैं एंड आपका माइंड कितना शांत है. जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं तो वो आपने अचीव कर ली है. ये मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अच्छे लोग हों और आपको जितना की जरूरत है वो हो, सेटिस्फेक्शन हो लाइफ में और पीसफुल माइंड हो. दैट्स ऑल. दैट इज सक्सेस. और ये अच्छे लोग क्या होते हैं? अच्छे लोग इन द सेंस कि जो आपके साथ रहे, मतलब जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, जो आपको मोटिवेट करें
आपके काम के लिए। अगर ऑल आप राइट। कभी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। ऑल राइट। दैट्स ऑल्सो सुपर। सो जिनके साथ नाउ, रह के आपको खुशी मिले। जिससे आपको खुशी मिले, जिनके साथ रह के आपको खुशी मिले, वो अच्छे लोग हैं। वेरी ट्रू। और जो आपके निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दें, वो अच्छे लोग हैं। और जो समय पड़ने पर आपका साथ दे, वो अच्छे लोग हैं। और ये लोग मिलते कहाँ पे हैं? सर कभी कभी तो मिल जाते हैं। कभी कभी मिल मुझे जाते मिल हैं। जाते हैं कभी कभी। जैसे कि कभी भी मुझे जरूरत होती है तो जैसे कि मैं आपको ही फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लासेस में देखती हूँ तो वो जो फर्स्ट पार्ट होता है तो उसमें आप इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, वो मेरी पूरी सारी नोटबुक्स में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो वो जब मैं पढ़ती हूँ, कुछ पढ़ने से पहले मैं वो पढ़ती हूँ, तो वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है। निगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आते हैं। इवन मैंने भी कई बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम दिया है, उसमें पॉइंट मार्जिन से रह जाती हूँ मैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं यही सोचती हूँ कि सर तो बोलते हैं कि हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, हमको अच्छा फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। ऑल दैट्स राइट। ऑल्सो। वेरी गुड। तो स्वाति ने कहा कि सक्सेस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि रुपए पैसे हैं, सक्सेस का मतलब होता है कि आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन आप सेटिस्फाई कैसे होते हो? व्हाट इज सेटिस्फैक्शन मीन्स टू यू? क्योंकि इंसान तो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। जितना मिल जाए उतना कम है, उसे और चाहिए। जी सर, बस ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हाँ इतना मिल जाए तो उसमें भी मतलब छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां जब ढूंढने लगते हैं कि हाँ वो हमको चीज खुशी दे रही है, तो मेरे लिए तो वही सेटिस्फेक्शन है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। छोटी छोटी चीजों में जब हम खुशियां ढूंढने लगते हैं, तो वही सक्सेस है। तो ये सारी चीजें मैं जो डिटेक्ट कर रहा हूं, दिस इज ऑल कॉल्ड एज बिलीफ सिस्टम। हम सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। तो जब आप स्लेट ऑफ माउथ को यूज करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो स्लेट ऑफ माउथ डिसाइड करती है, वो होता है कि आप अपने बारे में खुद को क्या कहते हो, हु आर यू। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो, वो डिसाइड करेगा कि आपका स्लेट ऑफ माउथ, आपका लैंग्वेज क्या है। हु आर यू। जैसे कि मैं उतनी पढ़ लिख नहीं पाई, मेरा स्कूल उतना बढ़िया नहीं था, एजुकेशन उतना बढ़िया हो नहीं पाया, इसलिए आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन, मेरी पर्सनालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर सेल्फ। मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस उतने बढ़िया नहीं है, अगर होते ना तो मैं तो दुनिया फाड़ के रख देता। राइट। दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर सेल्फ। सो हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ डिसाइड्स द लैंग्वेज दैट यू स्पीक। क्योंकि आप जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, हर एक लैंग्वेज, एक लाइन जो है ना, वो ट्रेजर है, हीरा मोती है वो। कुछ में काला सोना है और कुछ में पीला सोना है। बट सोना है उसमें। डिपेंड करता है कि उस सोने को काला से पीला कैसे बनाया जाए। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप सक्सेसफुल कभी बनोगे ही नहीं। और आपने कहा कि मेरे पास लोग अच्छे रहेंगे तब मुझे सक्सेस लगेगा, और वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। तो क्या लोग डिसाइड करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, या आप डिसाइड करोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं हूं? ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके स्लेट ऑफ माउथ में ये आ रहा है कि यू आर एन एक्सटर्नल रेफरेंस पर्सन। आपने ये डिसाइड कर रखा है कि लोग मुझे सक्सेसफुल बनाएंगे। लोग डिसाइड करेंगे मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं। अच्छे लोग मेरे पास रहेंगे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छे लोग मेरे पास रहेंगे तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करूंगी। विच इज जस्ट लाइक कि सूरज या चांद को, तारे को मैं तोड़ के ले आ दूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी।
So this sleight of mouth is creating a psychology or the inner world inside. And now you are looking for the people who can make you positive. You are looking for the people who will make you, I am successful. And because of that, the internal success, which has to come from inside, from the inner world, is not coming. Because it is not visible in your language. And that's why I said words are the world. तो अंदर की दुनिया कैसी है वो आपके लैंग्वेज में दिखाई देती है. Isn't it? And let us hear from Abhijit. I think his network is good. Yes. So each one of you each one of you is having your own sleight of mouth, and even though you try and try and try, you can't make change. That's the next surprise element. आप चाहे लाख कोशिश कर लो कि मैं अपने लैंग्वेज में सर ने पकड़ना शुरू कर दिया है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा ऐसा जैसा सर पकड़ पाएंगे. तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऐसा नहीं होने वाला है. बिकॉज जब दुनिया ही ऐसी है तो उस दुनिया में रहने वाले लोग, आई मीन योर वर्ड्स, भी वैसे ही होंगे. राइट. सो लेट अस सी दैट. सो अभिजीत, हाउ डू यू डिफाइन अ रिलेशनशिप? जहां सर शांति मिले सर. जहां सर फ्रॉम वेयर वी फील कंप्लीट सर. मुझे लगता है सर सब कुछ ठीक है सर, और पीस ऑफ माइंड हो सर. जब पीस ऑफ माइंड हो तो वो क्या होता है? रिलेशनशिप होता है. नहीं सर, मुझे लगता है सर रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए तो जहां पर सर आपको मिले जे ना, ठीक है सर आप मैं पूरा हूँ सर. मुझे कोई है जो मेरे पास हर वक्त रहेगा, तो सपोर्ट करेगा, और ऐसे ही सर लाइक आवर फादर एंड मदर. जो हमेशा हमारे पास रहेगा और हमेशा हमें सपोर्ट करेगा, तो हम उसे कहते हैं रिलेशनशिप. राइट. हाँ सर, जीने के लिए तो सर पीस चाहिए ना, शांति चाहिए सर. तो ऐसा तो एक इंसान को चाहिए ना. तो जीने के लिए पीस चाहिए, जीने के लिए शांति चाहिए. एक इंसान को तो ऐसा चाहिए. राइट. हाँ सर, मुझे लगता है सर आई हैव अचीव्ड ईच एंड एवरीथिंग सर. नामदाग सब कुछ है सर. यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, और सब कुछ है आपके पास. मुझे मुझे लगता है सर एक परफेक्ट मेरी लाइफ बन जाएगी सर. एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी. ऑलराइट. जितने यहाँ शादीशुदा लोग हैं, किनको 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 परफेक्ट पार्टनर मिला है, और किनको किनको जिंदगी में पीस ऑफ माइंड है. और ये परफेक्ट पार्टनर होता क्या है? इसका डेफिनेशन क्या है? जो सर आपको समझे सर. ओके, लेट अस हियर फ्रॉम विनीता. शी इज मैरिड. और ये परफेक्ट पार्टनर क्या होता है? पीस ऑफ माइंड कितना मिलता है परफेक्ट पार्टनर मिलने के बाद? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. जी, गुड सर, इवनिंग. परफेक्ट पार्टनर जैसा चीज नहीं होती, वेदर इट इज लव और अरेंज मैरिज. इट टेक्स टाइम. every relationship needs time to like bloom, and I personally feel it is hard work. Your relationship needs जैसा आप अपने करियर में हार्ड वर्क आपको चाहिए उसकी सक्सेस के लिए, same requires for the relationship, and it always takes two to tango. Whether you are talking about your mother or father
or your siblings or your children or your spouse. It always takes two to tango. एक के भरोसे या एक एक दबाव में है और एक एकदम ही फ्री है, then also it won't work. Understanding is absolutely necessary. और जो कई बार frictions के साथ बहुत टाइम के बाद आता है, not necessary कि आप एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, and when you start living it is an entirely different thing. तो you need a lot of time, lot of understanding, और बहुत सारे arguments के बाद या बहुत सारे phases के बाद you kind of settled out. Maybe अगर आपकी not किस्मत नहीं कहूंगी मैं, अगर आपकी understanding बैठ जाती है, then it's a lifelong relationship. ऑल राइट, थैंक यू विनीता। तो अभिजीत ने कुछ Welcome, बातें यहाँ sir. पे सीखी। अभिजीत ने ये सीखा कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है और परफेक्ट रिलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। और आपने ये सीखा कि एक अच्छा रिलेशनशिप के लिए समय लगता है, इट मे टेक्स 10 to 12 years टाइम टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट। बट व्हाट विनीता सेड इज राइट फॉर विनीता, क्योंकि मैंने कितने ऐसे रिलेशन देखे हैं जो कि फर्स्ट ईयर से ही खराब हैं, और विनीता जैसे किसी फ्रेंड ने कहा कि रिलेशनशिप समझने में समय लगता है, थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो। और वो महिला घुटते जा रही है, घुटते जा रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतते जा रहे हैं, 10 साल हो गए। 10 साल बाद देखा कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ कुछ नहीं बदल रहा है। तो शी वॉज ट्रैप्ड एंड शी फेल्ट लाइक कि समय के साथ सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Are you getting my point? So what Vinita is telling is her belief system and it is working for her. But this belief system, what is working for her may not work for Abhijit, may not work for Swati. So in that case, we all are infected by someone else's thought. This is called as thought virus. तो किसी के बारे में किसी के मुंह से कुछ सुन लिया और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग कि ये हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Our thoughts are infected by the virus of someone else. वो वायरस उसके लिए सोना है, आपके लिए सांप है, डंक मार रहा है रोज। और आप इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि इसी दवा को खा करके वो जिंदगी अच्छी जी रही है और मेरी जिंदगी जहन्नुम हुई पड़ी है। बिकॉज ये भी सोचना है कि आपको ईश्वर ने अपना ब्रेन दिया है, लेकिन उसको यूज करने का मैनुअल नहीं दिया है, यूजर मैनुअल नहीं दिया है। वॉशिंग मशीन का यूजर मैनुअल है आपके पास, फ्रिज का यूजर मैनुअल है, मोबाइल का यूजर मैनुअल है, और यूजर मैनुअल है तो चीजों को यूज करना आसान हो जाता है। लेकिन ब्रेन का यूजर मैनुअल साइकोलॉजिस्ट भी आजकल नहीं बना पाया। आजकल आप गूगल में सर्च करेंगे तो ब्रेन के बारे में केवल 2% जानकारी है यूनिवर्स में, केवल 2%। 98% स्टिल अ मिस्ट्री। अब उस 2% में आपके पास कितनी जानकारी है, दैट यू हैव टू डिसाइड। So what words that you speak is coming out of who you are, and the second thing is coming out of what is your belief system. अभी अभिजीत ने कहा कि मैं जिंदगी में सब कुछ पा चुका हूं, बस एक ही चीज की कमी है कि एक बढ़िया सा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। सो फ्रॉम वेयर दिस वर्ड्स आर कमिंग कि मैं जिंदगी में सब कुछ पा चुका हूं, और फ्रॉम वेयर दिस वर्ड्स आर कमिंग कि जिंदगी में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाए। और हो सकता है किसी के लिए ये होगा कि मैं कितना भी पालूं वो सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है, आई नीड समथिंग एल्स, देयर इज स्टिल स्पेस। और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि दुनिया में कोई परफेक्ट पार्टनर होता ही नहीं है, वी हैव टू मेक दैट पार्टनर परफेक्ट। आपको इंसान मिलेगा, उसको ठोक ठोक के परफेक्ट बना लो।
जैसा कि विनीता ने कहा कि सर 12 साल लगे मुझे। राइट। सो how to change this inner world, how to change your neurology which is already infected, उस न्यूरोलॉजी को कैसे बदलें कि आपके लैंग्वेज में जो शब्द आ रहे हैं उसको कैसे सही किया जाए। और कितनी बार तो आपने देखा कि सवाल क्या पूछा गया है और जवाब कितना लंबा हो गया, कितनी कहानियां उसमें आ गई। क्या कभी आपने सोचा था कि ये इंसान इतना बोलेगा? हाँ, बट वो इनर वर्ल्ड जो है वो बुलवाता है। अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली वी डू दैट विदाउट नोइंग कि इसमें कुछ डिफेक्ट है। बिकॉज हमें तो यही पता है कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ और मुझे सब कुछ मिल गया है। दिस इज हाउ द बिलीफ सिस्टम आई हैव डेवलप्ड। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। हम अपने चारों तरफ एक बैरियर खींच देते हैं और उसमें रहते हैं और कहते हैं कि यही दुनिया है, ये कुआं ही ये दुनिया है। आई एम लिविंग इन अ वेल। और इस कुएं का जो पानी है, इससे बड़ा पानी तो दुनिया में है ही नहीं कहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। तो आपके अंदर, आप जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस फैमिली में रहे हैं, उन लोगों ने आपके दिमाग में क्या बातें डाली, दैट डिसाइड्स योर बिलीफ सिस्टम। मैंने कितने सारे लोगों को देखा, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने बहुत प्रयास किया अपने से करने का, 5-6 अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ। अब मैं पूछता हूं सवाल कि क्यों 5-6 अटेम्प्ट बर्बाद किया, 3 साल क्यों बर्बाद किया? मैंने देखा था मेरे दोस्त ने सेल्फ प्रिपरेशन करके कर लिया था, तो मैंने सोचा मेरा भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डेवलप द बिलीफ सिस्टम। बट अपना ब्रेन यूज करना है नहीं करना है? डू यू आस्क ए क्वेश्चन टू योर सेल्फ, इज दिस थिंग वर्किंग फॉर मी और नॉट? जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डू आई नीड समवंस एडवाइस, डू आई नीड समवंस एक्सपर्ट असिस्टेंस गाइडेंस, ताकि मैं चीजों को जल्दी अचीव कर लूं। सो थर्ड थिंग which affects your slate of mouth is how much traumatic situation you have faced in your life. आप अपने लाइफ में कितने ट्रॉमा से होके गुजर चुके हो। ये ट्रॉमा किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि दिल का टूटना, हाथ पैर का टूटना, सर का टूटना, बीमार पड़ना। तो ये किसी भी तरह के ट्रॉमा हो सकते हैं। और जितने ट्रॉमा से आप होके गुजरेंगे, आपकी न्यूरोलॉजी उतनी ही इन्फेक्टेड होती चली जाएगी, उतनी ही वो बर्बाद होती चली जाएगी, आपके बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे। मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है, सर मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई? ये तो शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको जनसंख्या को बढ़ाने में, जनरेशन को बढ़ाने में मदद करनी है। दिस इज हाउ यू आर गिवन द जेंडर। नहीं करनी है बिकॉज शादियां सक्सेसफुल नहीं होती हैं। आपने कितनी शादियां देख ली हैं कि सक्सेसफुल नहीं होती हैं? हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, 45 साल 50 साल के हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं की है। अंदर एक डर समाया हुआ है, शादी कर ली तो बर्बादी हो जाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसको शादी के बाद पार्टनर को ठोक ठोक के 10 साल 12 साल में उसको सही किया जाता है। विनीता से किसी ने सीखा ही नहीं है टेक्निक। No, sir, I always say it takes two to tango. You need an यस, understanding partner. Because एग्जैक्टली। आपके भी फ्लॉज होंगे, अगले के भी फ्लॉज होंगे, आपके भी पॉजिटिव होंगे, अगले के भी पॉजिटिव्स होंगे। सो इफ यू आर अगर आप अच्छे अच्छे तो मैं नहीं कहूंगी, बट लाइक इट डिपेंड्स, आपका आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं।
अगर आपका पार्टनर आप बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल हैं एंड द अदर वन इज नॉट, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हैं, अगले के दिमाग में नहीं होंगे. बट इफ द अदर वन इज रेडी टू मोल्ड and you are also ready to moldability और understanding is the key. आप दोनों का बैकग्राउंड बहुत बहुत डिफरेंट हो सकता है. सो शादियां नहीं चलने की वजह भी यही होती कि पहले एक जेंडर को चुप ही करा दिया जाता था. लाइक विमेन वर नॉट सपोज टू आप ससुराल में जाओगे, आप ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे. या अगर आदमी भी सोचता था कि अब ठीक है, इससे जिससे करा दी मम्मी पापा ने, ठीक है अब जिंदगी भर ये करना है. नाउ एवरीबडी नोज देयर राइट. नाउ नोबडी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज. एडजस्ट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. और अब एवरीबडी इज अवेयर ऑफ देयर राइट, सो वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग की कमी भी है, और वो इट्स लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो गई. सो द कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कई बार लोग तोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इजी भी होता है. तो इट टेक्स टू टू टैंगो. ऑल राइट. सो आपने देखा बहुत सारे सेंटेंसेस विनीता ने बोला, और मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था कि एक वर्ड्स को, कि इन वर्ड्स में कितनी पावर है. राइट. तो अभी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है. मान लो कि ये सेंटेंस कल्याणी ने कैच कर लिया, और उसने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया कि आजकल रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और विद दिस प्री कंसेप्ट नोशन शी इज गोइंग इनटू अ रिलेशनशिप. पहले से पता है कि सामने वाले के अंदर अंडरस्टैंडिंग कम है, क्योंकि विनीता मैडम ने बोला था कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है आजकल कम हो गई है. ठीक है. तो क्या किया आपने? अपने शब्दों से किसी और के ब्रेन को इन्फेक्ट कर दिया, अपना वायरस डाल दिया किसी के ब्रेन में. उससे क्या हुआ? दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो गई. बिकॉज यू नेवर नो कि मैंने क्या बोला और सामने वाले ने लिया क्या है. मैंने क्या दिया और सामने वाले ने क्या लिया, और कहां अप्लाई कर दिया, और क्या बर्बाद कर लिया. तो ऐसे आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि कितने सारे विचारों से आप इन्फेक्टेड हो, कितने सारे लोगों की बातें आपने मानी और जिंदगी में धोखे खाए हैं. कौन कौन आपके थॉट को इन्फेक्ट करके वायरस डाल के चला जाता है, और कितनी बार आपने इनर वॉइस को यूज किया है ये जानने के लिए कि जो सामने वाला बोल के गया उसमें कितनी सच्चाई है, वो मेरे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है. So, because of these infections, multiple times, layer by layer, if every day one person infect your thought, in 365 days, 365 infections are there, viruses are there. और सोचो आपकी उम्र कितनी है, multiply by 365. These many viruses are living in your brain, and that is deciding your inner world. और हमें लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है. I have achieved everything in my life. What I am doing is everything is fine. With this limited belief system, living in the well, where the whole ocean is waiting for you outside. Let us hear one more sleight of mouth from Jyoti. I think her network is good. So you can switch on your mic. Are you comfortable, Jyoti, in answering my question? Yes, sir. How do you feel when you feel a failure in the exam? How do you feel when you face a failure in the exam? Sir, sometimes I feel guilty uh, because I think मुझे लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, कि जो मैं नहीं कर पाई हूँ. जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो लगता है कि ये वाला पार्ट छूट गया है, तो उसके लिए गिल्टी फील होता है कि ये क्यों नहीं किया हमने. तो उसकी वजह से, और कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं सर कि सीखने को भी मिलती हैं कि ये न्यू क्वेश्चंस हैं, तो शायद इनसे हमें आगे के लिए, मतलब नेक्स्ट एग्जाम के लिए हमें ये भी प्रिपेयर करना है, तो ये पार्ट भी देखना है. तो And what happens when you feel guilty? सर फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है,
थोड़ा कि फ्रस्ट्रेशन होता है और स्ट्रेस होता है। यस सर, लगता है कि क्यों छोड़ दिया हमने, ये पार्ट रह कैसे गया, मतलब ये कैसे छूट गया, तो वो गिल्टी फील कराता है। ओके, तो फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं? सर फ्रस्ट्रेशन में कुछ नहीं करते, वो गुस्सा दूसरों पर उतरता है, घर में उतरता है, वो चिल्लाना, फिर थोड़ा सा कोई कुछ बोलेगा तो थोड़ा सा ही वो ट्रिगर बस दब जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है। दूसरों पे निकलता है, घर वालों पे निकलता है। वेरी गुड, गुड जॉब। ओके ज्योति, थैंक यू। तो आप सड़क चलते हुए भी लोगों को देखेंगे ना। मान लो कि आप बाइक स्कूटी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, बगल से एक इंसान गाली देता हुआ निकल रहा है, सामने से गाली देता हुआ निकल रहा है। एक दिन मैं कार चला रहा था और सामने वाले कार ने अचानक से ब्रेक मार दिया, मैंने भी ब्रेक मार दिया। मेरे पीछे एक बुलेट पे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। उसने ब्रेक मारा, उसकी गर्लफ्रेंड गिर गई। अब तो भाई बेइज्जती हो गई। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर चिल्ला रही है, तुम्हें ढंग से गाड़ी नहीं चलानी आती है। तो लड़का जो है उतर के आया और मेरे बैनेट पे पीछे एक लात मारा कस के। मुझे लगा क्या हो गया भाई। तो मैं बाहर निकला, भाई क्या हो गया। तो तमिल में कुछ बोल रहा था, मुझे लगा कि बोला कि आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड गिर गई। मैं कहा भाई इज्जत का सवाल है, मैंने उसको अपना कार्ड दिया, उनका बाद में बात करते हैं। तो लोगों के इनर वर्ल्ड में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि सड़क चलते किसी के चेहरे पे दिख जाएगा। हर इंसान अंदर ऑडिटरी डिजिटल से भरा हुआ है एकदम। गुस्सा एकदम जबान पे है। और जब अंदर से इंसान गुस्सा होता है ना, तो हर इंसान उसको खराब ही लगता है। और वो कहता है कि सब खराब है, सब मुझे गुस्सा दिलाते हैं। जो देखो वही गुस्सा दिला रहा है। बाहर की दुनिया कोलाहल भरी लगती है, क्योंकि कोलाहल अंदर है। रोड पे चढ़ोगे चलोगे तो आपको लगेगा कि कोई नोच रहा है। बस में बैठे हो तो कितना हल्ला हो रहा है, शांति नहीं मिल रही है। ये लोग शांत क्यों नहीं होते, ये लोग चुप क्यों नहीं हो रहे हैं। जबकि कोलाहल अंदर चल रहा होता है। ऑडिटरी डिजिटल कीप ऑन रिपीटिंग, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और अभी जो मैंने वीडियो दिखाया उसमें जो लास्ट में उसने लिपसिंग की थी, शी वॉज यूजिंग हर सेल्फ हिप्नोसिस प्रोसेस। अपने इनर वर्ल्ड को रीशेप करना, रीबिल्ड करना। एंड इट टेक्स टाइम, नॉट इन वन सेशन और नॉट इन वन आवर। क्योंकि खराब भी तो एक घंटे में नहीं हुआ है, खराब होने में भी कई साल लगे हैं। तो सही एक दिन और एक घंटे में कैसे हो जाए। आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग ऑडिटरी डिजिटल होते हैं, जिनका इनर वर्ल्ड बहुत ज्यादा टर्मोइल भरा हुआ होता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज। दे से इट्स टू नॉइजी, बड़ा लाउड स्पीकर चल रहा है। चीखना, चिल्लाना, श्रिलिंग, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स दे यूज। सो देयर इज नो क्लियर एक्सप्रेशन इन दोज ऑडिटरी डिजिटल पीपल। आप एक सवाल पूछ लो, अगर जवाब आपको समझ आ गया तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा। आपने देखा है कितने सारे लोगों यस को सर। आपने पूछा क्या है। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको लोग ट्रीट इसलिए अच्छे से नहीं करते क्योंकि वो खुद हार्म हुए बैठे रहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ ये रीजन रहता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और आपको लगता है कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। अगर आपको किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो आप ये मान के बैठ जाते हो कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। लेकिन यहां सबका स्लेट ऑफ माउथ खराब हो रखा है, सबके थॉट इन्फेक्टेड हैं, और वो सब आपके शब्दों में दिखता है।
लेट अस हियर फ्रॉम वन मोर पर्सन। किसको चुना जाए? रेखा। रेखा ने आज तकिया निकाल दिया है। Sir, I was जनरली, thinking the same. यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग। जनरली रेखा एक तकिया लेके चलती है हमेशा अपने साथ। सो नाइस नहीं, टू सी दैट हमेशा आप। नहीं सर। ओके, सो रेखा, आपके बच्चे हैं? यस सर, हाउ डू यू मेरा एक डिफाइन बेटा है चिल्ड्रन? 4 साल का। हाउ डू यू डिफाइन चिल्ड्रन? सर नॉर्मली अगर कहा जाए तो सबसे मतलब एक जो लेडी को पूरा कंप्लीट करता है एक बच्चा करता है। आप मतलब मदर का अगर आपको एक सुख चाहिए, मतलब आप एक पूर्ण रूप से एक लेडी बनना चाहती है तो आपको माँ बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके पेशेंस लेवल को इतना इंक्रीज कर देता है। जैसे हम जो माँ बनने से पहले होते हैं और जो एक मदर बनने के बाद होते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सर। जैसे हम पहले जो होते छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे हमें थोड़ा भी पेन हो रहा था हम उसे बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं कि हमारे नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे हम एक मदर बनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये चीज जो हमें हो रही है ये छोटी है, शायद हम इससे ज्यादा और मतलब पेन को ले सकते हैं। पेशेंस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है, जो मैंने 4 सालों में अपने अनुभव किया है कि मेरा पेशेंस लेवल मेरा बेबी होने से पहले और अब मतलब धरती और आसमान वाला फर्क है सर। तो मतलब सुपर, एक ब्यूटीफुल जर्नी है साथ में अगर आप एक। हाँ, थैंक यू सर। सुपर। चलिए, यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ शब्द लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं रेखा के। और यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी मिलेंगी आपके समाज में जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने रेखा के सेंटेंसेस को सुन लिया कि एक फीमेल तभी कंप्लीट होती है जब वो माँ बनती है। अब एक लेडी जो है वो माँ नहीं बन पा रही है, और रेखा के शब्दों ने उनको इन्फेक्ट कर दिया है। एंड शी इज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी इरिटेटेड, वेरी सैड, बिकॉज वो अब कंप्लीट कैसे फील करे। लेकिन उसने रेखा के सेंटेंसेस को सुन लिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि एक फीमेल तभी कंप्लीट है जब वो माँ बनती है, नहीं तो वो इनकम्प्लीट है। अब ऐसे तो लाखों महिलाएं ऐसे जो हैं जो बिना बच्चे के घूम रही हैं। तो इन शब्दों को सुनकर उनको क्या सोचना चाहिए? जिंदगी बर्बाद है, जहन्नुम है, आई एम इनकम्प्लीट। और कितनी महिलाएं इनके ये सेंटेंस को सुन के कि बच्चे जब हो जाते हैं तो पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, कितने लोग एग्री करते हैं यहाँ पे इससे? कुछ लोग कहेंगे जब से बच्चा हुआ पेशेंस ही खत्म हो गया है। तो जो आपके सेंटेंसेस हैं वो आपके वर्ड से आ रहे हैं। दिस इज योर स्लेट ऑफ माउथ, एंड दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल टू समवन एल्स। ये आपके लिए नहीं काम कर सर, रहे हैं, एक बात। राइट? यस, हाँ सर। हाँ तो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको ट्रू, बता रही हूँ। मे भी जो सुन रहा है ट्रू, इसकी लाइफ के एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो हर कोई रिलेट करने लगता है ना, हम भी तो ऐसे ही हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग अब आपकी बात को ये सुन के सोच के समझेंगे ये जो बच्चा है नहीं, बड़ा बड़ा खतरनाक है, नालायक है, पेशेंस बढ़ने ही नहीं दे रहा है। देखो, एक रेखा का बेटा है, इसका पेशेंस बढ़ा दिया जैसे ही पैदा हुआ। एक हमारा है, नालायक है, पेशेंस बढ़ने ही नहीं दे रहा है। सो वी मे क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्टोरी in our inner world because of infection, that is thought infection. So every time you hear a sentence, every time you hear a sentence, every time you hear a voice, infects your thought. And once you internalize that, जैसे कि अभिजीत ने एक एस्ट्रोलॉजर के वर्ड्स को इंटरनलाइज कर लिया कि तुम्हारी तो शादी नहीं होगी। सो ही इंटरनलाइज्ड इनसाइड कि भाई वो तो सही बोल रहा है, एकदम शाश्वत सत्य है, ब्रह्म है वो तो, ब्रह्म वाक्य बोल दिया उसने।
और जो इंटरनलाइज किया, उस इंटरनलाइज करने से इनर वर्ल्ड खराब हो गया, इनर वर्ल्ड गॉट इन्फेक्टेड, समस्याएं आनी शुरू हो गई. So when inner worlds are infected, we need a tool to rewire those neurological pattern of the brain, where you decide what thought is to be created and what thought not to be created. हम कौन सा थॉट क्रिएट करें और कौन सा थॉट क्रिएट नहीं करें. यहाँ पे कितने लोग हैं जब रात को सोते हैं तो स्टोरीज चलती हैं, नोवेल बन जाती है, पूरी रात में एक एक नोवेल लिख जाती है. कोई है ऐसा? और सुबह उठते हैं तो लगता है कि 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. सर मेरे को तो बहुत देते हैं. आपको बहुत होता है. तो ये जो नोवेल लिखने की प्रथा चल रही है ब्रेन के अंदर, रोज एक नई स्टोरी, रोज एक नया चैप्टर, ये आता कहां से है? फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? सर रोज ये क्वेश्चन मैं खुद से पूछती हूँ कि ये मुझे क्यों देखते हैं, मतलब मुझे क्यों आता है ये. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप कहते हैं मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ऐसा हो क्यों रहा है. ये होता है डिजिटल ऑडिटरी की वजह से, जो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो आपको दिखता ही नहीं है. एंड दिस सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड एज एमिगडाला. एमिगडाला एक छोटा सा बादाम जैसा सेंस ऑर्गन होता है ब्रेन के अंदर. AMY, एमिगडाला, GYDALDALLA. एमिगडाला जो है आपकी पूरे डिजिटल ऑडिटरी को कंट्रोल करता है, पूरे सेल्फ टॉक को कंट्रोल करता है. और सरप्राइज की बात यह है कि इस एमिगडाला को कंट्रोल करने का सिस्टम आपके पास नहीं है तो टेक्निक से आपको सीखना पड़ेगा. You'll have to program this amygdala through a technique called neuro-linguistic programming. So neuro-linguistic programming is a tool. It's a user manual to control your amygdala, majorly through self-talk. Majorly through self-talk. बट सेल्फ टॉक तब होगा जब पुराना वाला टॉक बाहर निकल जाएगा, नया वाला टॉक अंदर जाएगा. कचरा अगर अंदर भरा हुआ है तो आप कितना लाख टॉक कर लो, आपका इनर कंसाइंस अलाउ ही नहीं करेगा. जैसे कि एक डल इंसान है जिसको कुछ नहीं आता है और उसको बार बार सेल्फ टॉक करने के लिए बोलो आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट. 2 बार बोलेगा, तीसरा बार आपको बोलेगा मैं बुद्धू समझाए क्या, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो क्यों बोलूं इंटेलिजेंट. तो हमारे अंदर एक इनर रेजिस्टेंस भरा होता है जो कि वो रिपीट करने से, सेल्फ टॉक करने से मना कर देता है. नहीं, बोलना ही नहीं है, ये सच नहीं है तो क्यों बोलना है. So this is how we create a resistance to limit our world very, very small. So this is limited belief system. Or just imagine for a moment कि आपने अपने बिलीफ सिस्टम को बड़ा कर लिया. वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उनके बिलीफ सिस्टम को आपने अपना लिया. आपने उन सबको मॉडल करना शुरू कर दिया जो विश्व के सबसे महानतम इंसान हैं. Then imagine how your world will look like. So this is called as modeling in neuro-linguistic programming. जब मैंने ये प्रैक्टिशनर कोर्स नहीं किया था तो मेरा बिलीफ सिस्टम भी बहुत छोटा था और मुझे भी अभिजीत की तरह लगता था कि सब कुछ पा लिया है जिंदगी में, जो मिलना चाहिए सब कुछ मिल गया है. और ये भी लगता था कि अभी सही समय नहीं है ये सब चीजें सीखने का, फ्यूचर में कभी देखा जाएगा, जब समय आएगा, जब अपॉर्चुनिटी आएगी. बट देयर वाज ऑलवेज एन इंट्यूशन इनसाइड मी कि व्हाट इफ आई डू नाउ, क्या होगा अगर मैं आज इसको सीख लेता हूं. बिकॉज ना करने के कई एक्सक्यूजेस होते हैं.
ना करने के कई एक्सक्यूजेस होते हैं। आपको घर में कोई भी काम करना हो, आप देखोगे कि उसको नहीं करना पड़े, उसके लिए आप 4 बहाने निकालोगे। जैसे कि सुबह उठना है 5 बजे, कितने बहाने निकालते हो आप? नहीं उठना है। पहला बहाना, कल रात को लेट लेट से सोया था तो आज थोड़ा ज्यादा सो ले। दूसरा बहाना, कल खाना रात को लेट हो गया था, खाना भी पचा नहीं होगा, चलो थोड़ा और सो लेते हैं। तीसरा बहाना, आज ठंड बड़ी ज्यादा लग रही है, बारिश हो रही है, थोड़ा और सो लेते हैं। चौथा बहाना, आज संडे है, आज थोड़ा और सो लेते हैं। ठीक है। तो ये कई सारे बहाने हम बनाते हैं खुद से। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ टॉक। दिस इज अनदर स्लेट ऑफ माउथ विच वी इन्फेक्ट आवर ओन थॉट। हम खुद ही वायरस क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर। लेकिन उठने के लिए एक ही रीजन काफी है। नहीं उठने के कई सारे बहाने होते हैं, काम करने का एक बहाना होना चाहिए। किसी भी चीज को अचीव करने का एक ही बहाना ढूंढना है। राइट। लेट अस हैव अ टॉक विथ रश्मिता. Rashmita Yes. wanted to do my course, Emotional Genius course, and she was looking for lot of reasons कि मुझे ये कोर्स नहीं करना पड़े. And then what happened? Let us hear from her. I do not know कि आपके inner world में क्या चल रहा था, but I just want to know that what has happened. यस सर। Yes. सर जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया तो मेरे माइंड में ऐसे ही पहले चल रहा था कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सब कुछ ठीक हो जाए या फिर फ्यूचर में कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो ही मैं ज्वाइन करूंगी, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ऐसे थे जो मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्योंकि अगर मैं कोई कोर्स कर रही हूँ तो उसका इनपुट जितना मेरे अंदर जाएगा आउटपुट भी इतना अच्छा आएगा। तो यही सोच के मैंने कहा था कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं बाद में ही करती हूँ। तो लेकिन आपने जो एक बात कही, मुझे एक ही लाइन लाइन था जो मुझे बहुत इंस्पायर किया सर, कि जब प्रॉब्लम है तभी तो सलूशन आपको ढूंढना चाहिए, बाद में क्या ही करोगे इससे करके। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो प्रॉब्लम तो है, अगर सलूशन मिलता है तो मैं करूंगी सर। और आपकी बात में भी एक जो ट्रस्ट होता है सर वो था सर आपके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है सर अगर मैं ये सीखूंगी कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी सर। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आपने देखा कि मेरे एक सेंटेंस में इतनी पावर थी कि उसने आपको इंस्पायर कर दिया ये करने के लिए कि आई कैन डू इम्पॉसिबल्स. Because when you are coming in the world of neurology, I teach you how to do impossible tasks. आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, मजा तो तभी है करने में जब पॉसिबल नहीं है. And one day when I was teaching NLP on one of the Sunday, Yogesh and Sadhana, 16 hours at a stretch. Yes, Yogesh, isn't it? 16 घंटे they were studying. Yes, sir. At a stretch. This was completely impossible. But when we challenge that inner world and open up with a belief system that everything is possible, जिंदगी का मजा वहां लेंगे जहां पे इम्पॉसिबल लगे. When you develop this belief system, then how the world looks like. हम वो काम करेंगे जो इम्पॉसिबल है. So few tasks I give you, like from tomorrow you start doing brush from your left hand and see the change, which is very difficult. But this one change in your physiology will bring a huge change in your neurology. बिकॉज जब आप ब्रेन को काम देते हो तो वो डेवलप होता है. डंबल उठाते हो तो मसल डेवलप होते हैं. दंड बैठक करते हो तो पैर के मसल डेवलप होते हैं. वैसे ब्रेन को चैलेंज करते हो तो ब्रेन डेवलप होता है. लेकिन हम करते क्या है, जैसे ब्रेन चल रहा है चलने दो, कंफर्टेबल जोन में रखो उसको. But here in my world of neurology, I teach you to take the challenges and do all impossible tasks. What is not possible in the real world. बाएं हाथ से लिख के देखो. Every day try for 5 minutes. It will give you a lot of pleasure.
do impossible tasks. And that will develop a new belief system, which will make you limitless. And then you say, अब कुछ भी हो सकता है, anything is possible. Nowadays we are doing Ashtasiddhi Sadhana in the morning sessions. What I am teaching there? I am just teaching that every impossible is possible. And this is how the people who are sitting at the higher post, at the higher level, this is how they think. एलॉन मस्क ने कभी सोचा होता कि 6 कंपनी का मालिक मैं नहीं बनूंगा, एक ही काफी है। कई लोग तो एक भी नहीं संभाल पाते हैं, तो नहीं बन पाता। But he has broken those barriers of limited belief system and opened up the wider belief system where the impossibles are possible. किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि रॉकेट ऊपर जाएगा और वापस लैंड भी करेगा। But he thought and proven it right. रॉकेट ऊपर गया और वापस आया, लैंड भी किया। So just let us learn how to open the wider belief system, challenge your brain every day with this 1 hour of free masterclass. You have learned few things. One, change your inner world. Second, just observe your slate of mouth, what you speak, see what you speak. Is it creating a challenge in others' life? Is it infecting others' life? कितनी बार ऐसा नहीं होता है, किसी से बात कर लिया, मूड खराब हो गया, 2 मिनट बाद किया, पूरा रात खराब हो गया। और कितनी बार ऐसा भी तो होता है, अच्छा बात कर लिया और मूड बढ़िया हो गया, हरा भरा हो गया। That means there are the magic in the slate of mouth. आप कौन से स्लेट ऑफ माउथ को ले रहे हो, कौन आपके इनर वर्ल्ड को इन्फेक्ट करके जा रहा है, और आपके पास कोई ऐसी मशीन है क्या कि अगर ये स्लेट ऑफ माउथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक बैरियर खींच दूं। So in my world of neurology, I teach that button where you create a barrier. भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं है, I'll draw a barrier here. I will decide when to think right and I will decide what to think. किस समय पे मुझे कितना इमोशन एक्सप्रेस करना है, मुझे डिसाइड करना है। प्यार में पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, गुस्सा करना है तो कितना करना है, I will decide. I have a switch, I have a regulator. जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, वैसे मैं अपने इमोशन का रेगुलेटर अपने हाथ में रखूंगा। Because excess of everything is bad. Excess of love is bad. Excess of anger is bad. Excess of irritation is bad. Excess of happiness is bad. So any emotions in excess is bad. And so it is very, very essential to learn the emotional intelligence. So tomorrow I am starting a course called Emotional Genius, which works on the principle of neuro-linguistic programming, in which I teach you how to control your inner world, how to control your auditory digital, अपने इनर वर्ल्ड को कैसे फ्रेम करना है ताकि आपका जो लैंग्वेज है वो सही हो जाए। बिकॉज लैंग्वेज जब सही हो जाएगा तो फिजियोलॉजी सही हो जाएगी। हाथ के एक्शन, अभी मैंने जो वीडियो दिखाया था वो सब किसका कमाल था? इनर वर्ल्ड का कमाल था। आपका शरीर सीधा सीधा हो जाएगा, लैंग्वेज सीधा हो जाएगा, आपके बिहेवियर सीधे हो जाएंगे और सब कुछ बदलेगा तो आपका एनवायरमेंट बदल जाएगा, इकोलॉजी बदल जाएगी। एंड दिस वर्ल्ड looks like beautiful because the inside is beautiful. अगर अंदर सुंदरता है तो बाहर दुनिया खुश नसीब है, because beauty lies in the eyes of the beholder. All of you know that. So welcome to the world of neurology, and if you are interested to learn more and more and change your inner world, you are welcome all the time. My one course is of 42 days in which I take 3-hour classes back to back at a stretch, 3-hour class 9 to 12 every Sunday. And whatever you learn for these 3 hours, you have to apply for a week. पूरे एक हफ्ते अप्लाई करना है, अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिस करना है, and again next week overloaded with 3 more hours of class.
And in every 3 hour of class, I will rewire your brain with the thought I create. I'm creating the thoughts. I'm trying to infect your brain for last 70 minutes. And don't you feel a change? Are you not deciding something? I'm going to make a change from today. I'm going to check my language. I'm going to check my thought. I'm going to check who are the people who are talking to me, how they are changing my talk, who are deciding my emotions. मेरे सक्सेस को कौन डिसाइड कर रहा है? मेरा इनर वर्ल्ड कौन बना रहा है? इनर वर्ल्ड की मिस्त्री बनाने वाला अंदर है या बाहर कोई बना रहा है? So 6 weeks, 3 hours, 18 hours of overloaded classes. And then apart from this one batch, once you complete 6 weeks, then the second batch will come where you will get a free entry. Where what you have learned, you have to perform and show. And then the third batch, another free entry where you will be performing and training to the people, the new people who are coming. So from a learner to the journey of a trainer, because when we perform the task, we learn the best. जब तक हम पढ़ा नहीं ले तब तक अच्छे से सीखते नहीं है. तो इतना देर आपने सीख लिया, अभी मैं पढ़ाने के लिए कहूं तो आप कितना देर पढ़ा पाओगे? 70 मिनट की क्लास में से कितना देर का क्लास आप ले पाओगे? So when you learn that ability, that is 70 मिनट में 60 मिनट तो मैं हम आराम से क्लास ले सकते हैं on sleight of mouth, on infection of thought. That is the day when you are a powerful person, when you have upskilled yourself. So now, any question by anyone? The session is open for the next 2 minutes. I will reply to your every question and then we'll close the session. Yes. किसी का कोई सवाल है? Sir, is there any age limit? Age limit is minimum 12 years. 12 years. Okay. All right. क्योंकि 12 years के बाद उतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हर चीजों को इंसान समझने लगता है. Right. Because when I learned this neuro-linguistic programming at the age of 40, I was just dreaming, had I got this opportunity at the age of 20, तो मैं क्या क्या कर लेता. And then I enrolled my son, who is just 13 years old. And then he is making magics after this learning. So the earliest we learn this neurological pattern of brain, कि हमें इसे कंट्रोल कैसे करना है, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. हमारे शब्द में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है. All right.